गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमोमीटर्स के बारे में। व्हाट इज डायनेमोमीटर्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेंगे। डायनेमोमीटर क्या होता है, क्यों यूज किए जाते हैं और कैसे इसका वर्किंग है। फिर टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर्स में डिस्कशन करेंगे। बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, टॉर्जन डायनेमोमीटर, हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर एटसेट्रा। ओके, सो dynamometers. A dynamometer is a brake, but in addition it has a device to measure the frictional resistance. Knowing the frictional resistance, we may obtain the torque transmitted and hence the power of the engine. Okay, बेसिकली डायनमोमीटर्स यूज किए जाते हैं किसी भी इंजन की शाफ्ट पर या किसी शाफ्ट पर टोटल पावर, जो आउटपुट पावर है, उसे मेजर किए जाने के लिए। ओके, as we know that the power output of a shaft is P is equal to the 2 pi nt by 60, where n is the rotation per minute and T is the torque in Newton meter. Okay, so we can calculate the output power of a shaft with the help of the dynamometers. Dynamometers are two types. First is the types of dynamometers. Dynamometers are two types. First is absorption dynamometer and second is transmission dynamometer. Absorption type dynamometers and transmission type dynamometers. So first, absorption type dynamometers basically क्या होते हैं? Absorption, in the absorption dynamometers, the entire energy or power produced by the engine is absorbed by the friction resistances of the brake and is transformed into heat during the process of measurement. Okay, in absorption type dynamometers, all the power transmitted or produced on the output shaft is absorbed by the dynamometer with the help of friction resistances. Okay, and the total power output at the shaft is absorbed by the dynamometer. Then we can calculate the power output at the shaft with the help of the calculation by calculating the torque output at the shaft. The rotation per minute of the shaft can be calculated by the tachometer. Okay, but in the transmission dynamometers, the energy is not wasted in friction, but is used for doing work. The energy or power produced by the engine is transmitted through the dynamometer to some other machines where the power developed is suitably measured. ओके, तो यहाँ पर दो तरह के डायनमोमीटर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो तरह के डायनमोमीटर्स होते हैं। फर्स्ट डायनोमीटर इज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर, जहां पर शाफ्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, और फिर वहां से टॉर्क को कैलकुलेट करके हम पावर ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, पावर आउटपुट कितना आ रहा है शाफ्ट पर, उसे मेजर कर सकते हैं। बट इन ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं कि दूसरे इक्विपमेंट और मशीन पर, जिससे हम वहां पर पावर को मेजर कर सकें। क्लियर?
Now, further absorption type dynamometer can be classified as two types. First is Prony brake dynamometer and second is rope brake dynamometer. Okay. The absorption type dynamometer further classified in two types. First is Prony brake dynamometer and second is rope brake dynamometer. एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं. Wait! Did you download Grammarly? Come on, man. Everyone's using it. If you want to ace this paper, then don't. Rope brake dynamometer. In this video, we will see how the rope brake dynamometer works. A rope brake dynamometer is another type of absorption dynamometer that is used to measure the engine. यहाँ पर एक रोप ब्रेक डायनोमीटर को दिखाया गया है. एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर होता है और यहाँ पर इंजन है. इंजन की शाफ्ट पर एक पुली माउंटेड है. ओके. और पुली के अराउंड वाउंड किया हुआ है एक रोप को रैप किया गया है. ठीक है. और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस. और नीचे की तरफ यहाँ पर हम वेट अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली हम तब तक स्मॉल वेट अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि ये पूरा का पूरा शाफ्ट रुक नहीं जाता. सबसे पहले देखिए इंजन की शाफ्ट को स्टडी कंडीशन में हम रन कराते हैं कांस्टेंट आरपीएम पर. टैकोमीटर की हेल्प से सबसे पहले आरपीएम को मेजर करते हैं यहाँ पर कि इंजन की शाफ्ट का इस समय रोटेशन पर मिनट कितना है. आफ्टर दैट हमें अगर टॉर्क कितना यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो हमें मिल जाए तो वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट पावर एट द शाफ्ट इफ वाई द फार्मूला P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60. तो यहाँ जो पुली है, पुली पे जो भी पावर आ रही है उसे वेट अप्लाई करके हम यहाँ पर पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है. फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के थ्रू. तो बेसिकली सारी पावर एब्जॉर्ब करके यहाँ ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग बैलेंस में एक वैल्यू आएगा वेट का और डाउन में जो वेट लगाया वो हमें पता है. टोटल यहाँ पर जो वेट होगा W1 माइनस W2 जो भी आपका डाउनवर्ड वेट जा रहा है W1 माइनस W2 वो टोटल फोर्स होगा नीचे की तरफ. अगर इसमें रोटेशन हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो आपने जो फोर्स लगाया है इसे वेट लगाया है F इज इक्वल टू जो टॉर्क होगा वो कितना आप अप्लाई कर रहे हो रेजिस्टेंस टॉर्क. तो F into R is the radius of this pulley and we applying a resistance torque to stop this shaft F into R which is equal to the capital T.
Okay, here F is equal to the W1 minus W2, total weight applied in downward direction and total weight showing in the spring balance. If the total weight showing in the spring balance is W2 and the total weight applied at the dead end is W1, then the force F is equal to the W1 minus W2. This force is when this force is multiplied by the G weight, sorry, this weight is multiplied by G and multiplied by the radius r, small r, radius of the pulley. In that case, we can calculate the resistance torque developed at this pulley, which is equal to the torque developed by the engine. Okay. ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज ओके, देखिए ब्रेक पावर यहाँ पर जब भी हम किसी इंजन की पावर की अगर हम बात करते हैं तो उसे ब्रेक पावर हम लोग कहते हैं, बिकॉज जो पावर होती है जो किसी भी इंजन की, हम उस पर ब्रेक अप्लाई करके उस पावर को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ब्रेक पावर कहा जाता है. Here the brake power is equal to 2 pi n w minus s r plus r upon 60. Here n is the small capital N is the rotation per minute of the shaft, which can be calculated by the digital tachometer, and here w is the total dead weight applied at the one end of the rope, and capital S is the reading shown by the spring balance. Here capital R is the radius of the pulley and small r is the radius of the rope. If the radius of the rope is uh, cannot be neglected, in that case we have to take it this small r also. Okay. Okay, now come to the Prony brake dynamometer, first type of dynamometer. Okay, a simplest form of absorption A simplest form of an absorption type dynamometer is a Prony brake dynamometer. It consists of two wooden blocks placed around a pulley fixed to the shaft of an engine whose power is required to be measured. The blocks are clamped by means of two bolts and nuts. A helical spring is provided between the nuts and the upper block to adjust the pressure on the pulley to control its speed. The upper block has a longer lever attached to it and carries a weight W at its outer end. A counterweight is placed at the other end of the lever, which balances the brake when unloaded. Two stops as are provided to limit the motion of the lever. चलिए इस डायग्राम में हम समझते हैं किस तरीके से जी, यहाँ पर एक प्रोनी रोप ब्रेक डायनोमीटर है. प्रोनी डायनोमीटर सिंपल एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर है. प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर. ओके, प्रोनी प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर्स में बेसिकली इसका हम
अरेंजमेंट यहां देखते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है इसका। देखिए यहां पर एक लीवर है सबसे पहले तो ये, ओके। यहां इस लीवर को एक सपोर्ट दिया गया है एस पॉइंट पर। दो ब्लॉक्स हैं यहां पर, देखिए ये ब्लॉक है यहां पर, और ये जो पुली है हमारी जो इंजन की शाफ्ट पर माउंटेड है, उसके राउंड में इस तरीके से यहां पर ये ब्लॉक है दो, ओके। इन दो ब्लॉक्स को नट्स के थ्रू ज्वाइंट किया गया है, ये जुड़े हुए हैं लीवर से होते हुए, ओके। यहां पर ये यहां अपर लीवर के और पहले नट के बीच में स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है, फ्री होगा यहां पर ये, यहां कुछ गैप है, ठीक है, दोनों के बीच में। यहां एक काउंटर वेट है जो हम अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली काउंटर वेट आपके डब्ल्यू वेट के बराबर है। यहां पर इंजन की शाफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ऐसा फोर्स अप्लाई करना होगा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करे, टॉर्क जनरेट करे। तो यहां वेट अप्लाई करके हम लोग लीवर पर, ठीक है, वेट अप्लाई करके यहां पर फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसकी ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो पुली है वो पूरी तरह से उसमें जो रोटेशन है वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। When the brake is to be put in operation, the long end of the lever is loaded with suitable weight W, and the nuts are tightened until the engine shaft runs at a constant speed and the lever is in horizontal position. Under these conditions, the movement due to the weight W must be balanced the moment of frictional resistance between the block and the pulley. Okay, let W is the weight at the outer end of the lever. Outer end of the lever, कैपिटल W, ये फोर्स जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, ओके। L is the horizontal distance of the weight W from the center of the pulley, okay. Hello. Capital L is the distance of weight from the center of the pulley in meters. यहाँ पुली का जो सेंटर पॉइंट है वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेट के बीच का कैपिटल एल है, क्लियर, ओके। कैपिटल एफ इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द पुली इन न्यूटन्स। कैपिटल एफ जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ पुली और ब्लॉक के बीच में वो एफ लिया गया है, कैपिटल एफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द पुली इन मीटर्स and capital N is the speed of the shaft of the shaft of the in RPM, speed of the shaft in RPM. We know that moment of the frictional resistance or torque on the shaft T is equal to W into L. देखिए यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप होगा वेट अप्लाई करने से वो क्या होगा, टॉर्क जो यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होगी W वेट की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो होगा W इंटू एल। वेयर
टोटल W इज इक्वल टू दी एफ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये एफ के बराबर होगा, एफ इंटू एल। ओके, वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन कितना होगा, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगल टर्न इन रेडियस, एंगल टर्न बाई रेडियस इज 2 पाई एन। ओके, एक एक एंगल टर्न इन रेडियंस, एक रोटेशन 1 मिनट में 2 पाई होगा बेसिकली वैसे तो। वर्क डन हो जाएगा न्यूटन मीटर, टॉर्क है टी, टोटल एक एंगल टर्न इन रेडियंस 2 पाई हो गया, तो जो टोटल वर्क डन आएगा 2t into 2 पाई न्यूटन मीटर। So we know that brake power is equal to the, we have the value of f is equal to w, we have the value of r, हाँ w into f, w into l is equal to f into r होगा यहाँ पर। तो बेसिकली हम t कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे w और l अप्लाई करके, ठीक है। तो अगर हम t डिटरमाइन कर लेंगे तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू पाई एन टी बाई 60। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख सकते हैं और कैपिटल N की वैल्यू हम एज टैकोमीटर के थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। सो t इज इक्वल टू पाई एन बाई 60, p इज इक्वल टू w, t इज इक्वल w इंटू एल इंटू 2 पाई एन बाई 60 इन वॉट्स। ये टोटल हमारे पास ब्रेक प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर से जो कैलकुलेट किया हमने ब्रेक पावर, वो हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, next dynamometer is rope brake dynamometer. What is rope brake dynamometer? It is another form of absorption type dynamometer which is most commonly used for measuring the brake power of the engine. It consists of one, two or more ropes wound around the flywheel or rim of a pulley, which is fixed rigidly to the shaft of an engine. The upper end of the ropes is attached to a spring balance, while the lower end of the rope is kept in position by applying a dead weight. Okay, in order to prevent the slipping of the rope over the flywheel, wooden blocks are placed at intervals around the circumference of the flywheel. So this is the rope brake dynamometer. See, what is rope brake dynamometer? Basically इंजन की शाफ्ट से एक पुली अटैच रहती है, फिक्स्ड रहता है यहाँ पे, और पुली के अराउंड हम एक रोप को वाउंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। रोप के अपर एंड पर एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, वेट अगर यहाँ हैंग करेंगे हम इसको, अगर यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस की, और नीचे की तरफ यहाँ पर हम डेड वेट अप्लाई करते हैं स्मॉल स्मॉल। ओके, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है शाफ्ट, तो जो टोटल वेट होगा नीचे की तरफ जो अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो कैपिटल एफ आएगा जो उसको स्टॉप कर रहा है, दिस कैपिटल एफ इज इक्वल टू द डब्ल्यू माइनस एस, और इसके सेंटर पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो टॉर्क, जो पावर थे वो जो टॉर्क था वो एंटी क्लॉकवाइज था इंजन का,
इसे रोकने के लिए, कैपिटल टी को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस टॉर्क चाहिए वो क्लॉकवाइज होगा, वो होगा फोर्स इनटू दैट रेडियस, दैट डिस्टेंस, ओके, आर। यहाँ पर ये पुली है बेसिकली, ओके, इसका डायमीटर डी दिया है, स्मॉल डी डायमीटर दिया है यहाँ पर रोप का, क्योंकि सेंटर से अगर हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट की, मिडिल पॉइंट की, तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। कैसे? कैपिटल डी बाई 2, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस होगी। यहाँ से देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर पुली है और ये रोप है, तो जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ले रहे हैं हम यहाँ से। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगा रोप की डायमीटर का हाफ प्लस पुली की डायमीटर का हाफ, दिस विल बी इक्वल टू दी टोटल डिस्टेंस कैपिटल प्लस स्मॉल डी बाई 2 इंटू एफ, ओके। ओके, नेट लोड ऑन द ब्रेक, पहले हम इसमें, हाँ, in the operation of the brake, the engine is made to run at a constant speed. Firstly, the frictional torque due to the rope must be equal to the torque being transmitted by the engine. Let W is equal to dead load in newtons. Capital S is equal to spring balance reading in newtons. Capital D is equal to diameter of the wheel in meters. Small d is equal to the diameter of rope in meters. And capital N is equal to speed of the engine. In that case, net load on the brake will be equal to the W minus S. Okay. Here, net load on the brake will be W minus S in newtons. We know the distance moved in the revolution is equal to the pi d plus d into, this is the another way, okay. Simply we can determine the power output on the shaft will be like this. Here is the resistance force, yeah, frictional resistance. Total distance from the center will be equal to the resisting torque T will be equal to the torque generated by the shaft. It will be equal to the F into distance. Let's suppose OA, and F is equal to W minus S. OA is equal to D plus D by 2. This will be the torque, resisting torque. It is equal to the torque generated by the shaft, and the power output at the shaft is equal to 2 pi nt by 60. So P is equal to the 2 pi by 60, 2 pi n by 60 into capital D plus small d by 2 into W minus S. इस फार्मूले को यूज करके सबसे पहले कैपिटल डी और स्मॉल डी हम पहले से ही हमें पता होगा, पुली की डायमीटर और रोप की डायमीटर। आफ्टर दैट इंजन को कांस्टेंट स्पीड पर रन करा के वहाँ पर कैपिटल एन पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे हम रोटेशन पर मिनट में, ये मीटर्स में होंगे और ये रोटेशन पर मिनट में। कैपिटल डब्ल्यू जो हमने अप्लाई किया है वो न्यूटन में हम निकाल लेंगे, और जो स्प्रिंग इंडेक्स में जो वैल्यू आई है स्प्रिंग बैलेंस में उसको भी न्यूटन में फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूले में अप्लाई करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू हमें देखना है और हमें ये देखना है एस कितना है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस फार्मूले में अप्लाई करके शाफ्ट पर टोटल आउटपुट पावर कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म। इसमें स्टेप्स ही हम ये फॉलो करते हैं कि जो वेट होते हैं यहाँ पर नीचे कैपिटल डब्ल्यू पे, जो नीचे रोप के अदर एंड पे जो हम वेट अप्लाई करते हैं, डेड वेट, वो स्मॉल स्मॉल डेट स्टार्ट करते हैं। पहले 5 हो सकता है, पहले 5 kg, फिर 6 kg, फिर 7 kg, और फिर
8 केजी, मान लीजिए 8 केजी पे ये स्टॉप हो गया, तो 8 से पहले हम कम करेंगे 7.5 केजी, यहाँ पर भी बंद है, तो फिर 7.4 केजी, जितना हम पास जा सकते हैं। तो 7.4 के बाद मान लीजिए 7.2 केजी पे ये रन कर रहा है, फिर से पुली स्टार्ट हो गई और शाफ्ट पुली रोटेट करने लगा, तो फिर हम 7.4 7.3 केजी पे इसको हम मेजर करके फाइनल करेंगे कि टोटल डेड वेट जो हुआ जिस पर पुली स्टॉप हो गई वो 7.3 केजी है, मल्टीप्लाइड बाई जी, तो ये न्यूटन्स में कन्वर्ट हो जाएगा डेड वेट है। सिंपल कैलकुलेशन है। So the total brake power of the engine will be W minus S into pi D plus D capital N upon 60 in watts. Now, dynamometers, classification of transmission dynamometers. The following types of transmission dynamometers are important to the subject point of view. First is epicyclic train dynamometer. Second is belt transmission dynamometer, and the third is torsion dynamometer. Okay, epicyclic train dynamometer, belt transmission dynamometer, and torsion dynamometer. First, epicyclic train dynamometer. Epicyclic basically एपिसाइक्लिक डायनोमीटर में एक सेंटर गियर होता है, सन गियर। इसके इसे स्पर गियर जहां शो किया गया है, ये एक सन गियर है, सेंटर में एक गियर है, स्पर गियर है। उसके बाद एक एनुलर गियर है जिसमें इंटरनल टीथ कट होते हैं, इंटरनल टीथ कट होते हैं। और इस एनुलर गियर और स्पर गियर के बीच में एक और गियर है जिसमें एक्सटर्नल टीथ कट होते हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ ये जो अगर आप कभी कभी हम सन गियर को फिक्स कर देते हैं तो आउटपुट हमें एनुलर गियर पर मिलता है, कभी कभी एनुलर गियर को हम फिक्स कर देते हैं, तो एनुलर गियर को फिक्स करने से अगर हम सन गियर को रोटेट करेंगे तो पिनियन पर हमें यहाँ पर इस गियर पर हमें आउटपुट शाफ्ट मिलेगा। तो बेसिकली इसमें अरेंजमेंट से एपिसाइक्लिक गियर्स भी बोलते हैं, गियर ट्रेन। तो एनुलर गियर्स में यहाँ इस तरह के एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर में बेसिकली हमें यहाँ पर टोटल आउटपुट पावर निकालने के लिए शाफ्ट पर हमें उसको शाफ्ट की पावर को एब्सॉर्ब नहीं करना होता। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें डायग्राम किस तरीके से है, फिर से स्टडी कर लेते हैं। एन एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनामोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल एपिसाइक्लिक ट्रेन ऑफ गियर्स। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं, जो मैंने बताया सन गियर। मैं आपको इसमें शो करता हूं कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन किस तरह से होता है। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये इसमें देखिए यहाँ पर काफी सारे गियर्स हैं। इसमें 3 गियर्स का मैं सिंगल गियर का दिखाता हूँ, जैसा कि उसमें बना हुआ है। चलिए, आपको इससे ही समझ में आ जाएगा।
जी। तो इस सेंटर गियर को कहते हैं सन गियर। ओके, ये रेड कलर में है। बाकी सन गियर के अराउंड जो गियर्स होते हैं उन्हें प्लेनेटरी गियर्स कहते हैं, पिनियंस भी बोलते हैं। ये इन प्लेनेटरी गियर्स को कैरियर होल्ड करने के लिए यहाँ पर है। 3 गियर्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सिंगल गियर भी हो सकता है। और इस अरेंजमेंट के आउटर में रिंग गियर है। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। यहाँ एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है हमारे पास। एन एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनेमोमीटर consists of a simple epicyclic train of gears, that is spur gear, an annular gear and a pinion. The spur gear is keyed to the engine shaft. तो जो इंजन की शाफ्ट है उससे आपका सन गियर जो है वो कनेक्टेड रहता है। स्पर गियर बीच का सेंटर का गियर कनेक्टेड है। ओके, एंड रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो। क्लियर। The annular gear is also keyed to the driving shaft and rotates in clockwise direction. Okay. सिंपली अगर सन गियर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी कि जो शाफ्ट है वो एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, और यहाँ अगर एक प्लेनेटरी गियर है, तो अगर इसके रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके रोटेशन क्लॉकवाइज होंगे। अगर प्लेनेट गियर आपका क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उससे कनेक्टेड एनुलर गियर ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्लियर? ओके। The annular gear is also key to the driving side and rotating को ठीक है। The pinion of the intermediate gear meshes with both the spur or sun gear and annular gear. Okay. The pinion revolves freely on a lever which is pivoted to the common axis of the driving and driven shaft. ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में यहाँ पर पिविट किया गया है, पिन जॉइंटेड है, ये आपका प्लेनेटरी गियर लीवर पर। ओके। A weight W is placed at the smaller end of the lever in order to keep it in position. A little consideration will show that if the friction of the pin on which the pinion rotates is neglected, then the tangential effort capital P exerted by the sun gear on the pinion and the tangential reaction at the annular gear on the pinion are equal. बिल्कुल सही है। हेयर स्मॉल p और यहाँ पर जो स्मॉल p ये दोनों इक्वल होंगे। सन गियर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जो यहाँ पर एक बेसिकली एफर्ट प्रोड्यूस करेगा, टेंजेंशियल एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका एनुलर गियर यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरा आपका एक एफर्ट जनरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर? Since these effort acts in upward direction, as shown in figure, therefore total upward force on the lever acting through the axis of the pinion is 2p. It is very clear. टोटल जो एफर्ट जनरेट हुआ यहाँ पर शाफ्ट इंजन शाफ्ट के रोटेशन की वजह से वो कैपिटल 2p इन अपवर्ड डायरेक्शन है, तो लीवर जो है आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। ओके। यहाँ पर लेकिन डेड वेट को अप्लाई करके हम उसे बैलेंस कर देंगे। This force tends to rotate the lever about the fulcrum
एंड इट इज बैलेंस्ड बाय ए डेड वेट W। यहाँ पर ये पिन ज्वाइंटेड है, फुलक्रम किया, यहाँ पिन ज्वाइंटेड है इस पर पॉइंट पर जहाँ पर हमारा पेनिट्री गियर है। यहाँ काउंटर वेट अप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर ये होल्ड किया हुआ है शाफ्ट लीवर को। तो अगर इसे यहाँ फ्री छोड़ दें तो ये पॉइंट पिवट पॉइंट के अबाउट ये लीवर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा and it is balanced by a dead weight W at the end of the lever. The stops SS are provided to control the movement of the lever. For equilibrium of the lever taking movement about the fulcrum F, कैपिटल F के अबाउट हम इसका मूवमेंट ले लेते हैं। 2p इंटू ए, एफ पॉइंट रोटेशन पॉइंट है, 2p इंटू ए टोटल फोर्स जो एफर्ट है ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, 2p इंटू ए डिस्टेंस जो है ये मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू इंटू एल, ये इसके इक्वल होगा। तो वी कैन कैलकुलेट हेयर p इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2a। ओके, let total R, capital R pitch circle radius of the sun gear in meters and capital N is the speed of the engine shaft. In that case, capital T is equal to P into R. Okay, P is the effort. So the total torque transmitted by the shaft is P into R. P is equal to W into L by 2A. जो डेड वेट है जो अप्लाई बैलेंस करने के लिए लगाया गया वो हम पहले से ही एज्यूम कैलकुलेट हमें पता है। कैपिटल एल हमें पता है कितनी डिस्टेंस पर अप्लाई किया गया है, स्मॉल ए भी हमें नोन है। तो वी कैन कैलकुलेट हियर द टोटल effort exerted by the sun gear, capital P. So T is equal to P into R, or so the power transmitted by the shaft will be equal to T is equal to 2 pi n by 60, where capital T is equal to P into R into 2 pi n by 60. So the total output, the total power can be calculated by this epicyclic train dynamometer. In this type of dynamometer, the power uh, can be calculated without absorb the power of the shaft. Okay, so this is the first type of transmission type dynamometer. Second type of dynamometer is belt transmission dynamometer or Thornycroft transmission dynamometer. ये एक दूसरी तरह का डायनोमीटर है, ये भी एक ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर है। इसमें भी पावर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हम लोग उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको केवल ट्रांसमिशन, उसके ट्रांसमिशन को हम लोग देखते हैं। ओके, व्हेन दी, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रोनीक्रॉफ्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर को और टॉर्जन डायनोमीटर को। इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे टॉपिक पर। यहाँ फिर से एक बार डायनोमीटर्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डायनोमीटर्स यूज किए जाते हैं किसी भी इंजन की शाफ्ट या किसी भी शाफ्ट पर टोटल आउटपुट पावर को कैलकुलेट किए, डिटरमाइन किए जाने के लिए, कैलकुलेट किए जाने के लिए कि कितनी पावर जनरेट हो रही है शाफ्ट पर। ओके, पावर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, सारे डायनोमीटर बेसिकली उसमें, सारे डायनोमीटर जो भी है, एब्जॉर्प्शन टाइप हो चाहे ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर हो, दोनों टाइप के डायनोमीटर में अगर हमें टोटल पावर आउटपुट अगर हमें कैलकुलेट करना है शाफ्ट पर, तो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एन, कैपिटल N इंटू कैपिटल T बाई 60, where capital N is the rotation per minute of the shaft and capital T is equal to the torque generated by the engine or shaft, which can be calculated by the dynamometer. Okay, this torque can be calculated by the either by the absorbing the power
of the shaft, okay, or it can be calculated by transmitting this power to another arrangement of system where we calculate the total torque generated by the shaft. If we calculate, if we determine the total torque generated by the engine shaft, we can easily calculates the total power output of the shaft. In some cases, the power generated at the output shaft is known as brake power because uh, in absorption type dynamometers, for calculating the output power of the shaft, we absorb all the power, we stop the engine shaft for calculating the torque. So, generally, the output power on a engine shaft is known as brake power. Okay, is known as brake power. It so the dynamometers are two types: absorption dynamometer and transmission dynamometer. So, absorption dynamometers are further classified in two types. First is Prony brake dynamometer and second is row brake dynamometer. Okay, and प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर के लिए एक सिंपल वीडियो हम लोग देख लेते हैं. What is Tony brake dynamometer? Dynamometer is used for measuring the power of the shaft or any pulley. Firstly, we will discuss. दो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, एक लीवर से जो एक ब्लॉक को फिक्स किया जाता है, काउंटर वेट अप्लाई किया जाता है लीवर को बैलेंस करने के लिए. सेकेंड एंड पर, अदर एंड पर एक डेड वेट अप्लाई करते हैं हम स्मॉल. ओके, यहाँ लीवर को होल्ड करने के लिए स्टॉपर्स हैं. ओके, नट्स, स्क्रू और नट के थ्रू ब्लॉक्स को हम फिक्स कर लेते हैं. हेलिकल स्प्रिंग्स लगे होते हैं ऊपर की तरफ. इंजन शाफ्ट रोटेट होती है. अगर इंजन शाफ्ट के ऊपर एक पुली माउंट कर देते हैं और पुली के अराउंड आपके वुडन ब्लॉक्स होते हैं. जब वेट अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर तो ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं पुली पर और स्मॉल डेड वेट्स को हम यहाँ इंक्रीज करते चले जाते हैं और जिस पॉइंट पर जाके ये पुली स्टॉप हो जाती है उस कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, वो टोटल टॉर्क रेजिस्टेंस टॉर्क होता है, रेजिस्टिंग टॉर्क होता है और that will be equal to the F into R also. Okay, सिमिलरली रो ब्रेक डायनोमीटर में भी हम लोग रो ब्रेक डायनोमीटर से भी कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंजन की शाफ्ट पर आउटपुट पावर को. P is equal to 2 pi NT by 60 by applying a dead weight at the, एक रोप को हम लोग वाउंड करते हैं पुली पर. पुली इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है रिजिडली और यहाँ पर एक एंड पर डेड वेट अप्लाई करते हैं, दूसरे एंड पर स्प्रिंग बैलेंस होता है. स्मॉल वेट को इंक्रीज करते जाते हैं जब तक कि पुली स्टॉप नहीं हो जाती. जैसे ही स्टॉप हो जाता है पुली का रोटेशन बंद हो जाता है तो टोटल जो टॉर्क होता है
रेजिस्टिंग टॉर्क जो डेवलप हुआ है यहाँ पर वेट अप्लाई करने से, दैट विल बी इक्वल टू द W माइनस S and multiplied by the distance of multiplied by the distance from the center, we can calculate the resisting torque, which is equal to the torque generated by the shaft. And we can put this formula, this torque in power. For power calculation, P is equal to pi nt by 60. We can easily calculate the brake power of the shaft. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डायनोमीटर को, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर को, और फिर लास्ट टॉर्जन डायनोमीटर को. ओके, थैंक यू सो मच.